Hello students, in last video we discussed about the basic phases of cell cycle. In this lecture we are going to discuss in detail the phases of cell cycle, that is interphase and mitosis. So we know that interphase is also called as a resting phase because here cell division process do not occur, that's why it is called as a resting phase. But cell is metabolically active and prepares itself for cell division, and that's why prepares for cell division, and therefore interphase is also called as a preparatory phase. तो इंटरफेस को प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सेल प्रिपेयर करते हैं सेल डिवीजन प्रोसेस के लिए, और सभी प्रकार के ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है. डीएनए का सिंथेसिस होता है एस फेज में, आरएनए मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन्स, एटीपी, अमीनो एसिड्स, ऑल दीज बायोमॉलिक्यूल्स are synthesized in interphase. But all the preparation processes that takes place in a sequence, and therefore interphase is divided into three phases. First is the G1 phase, second is the S phase, and third is the G2 phase. कि इंटरफेज प्रिपरेटरी फेज है, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है, आरएनए, प्रोटीन्स, डीएनए, एटीपी मॉलिक्यूल, सभी प्रकार के जो कोई भी एंजाइम्स है वो सेल में सिंथेसाइज होते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है प्रिपरेशन के सेल में वो सीक्वेंस में होती है. इसलिए इंटरफेज को तीन फेज में डिवाइड किया है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज. सो रिमेंबर दिस सीक्वेंस. फर्स्ट इज द G1 फेज, सेकेंड S फेज, एंड थर्ड इज द G2 फेज. नाउ सेकेंड फेज ऑफ सेल साइकिल, माइटोसिस. Mitosis is divided again into two processes, karyokinesis and cytokinesis. So what is meant by karyokinesis? Division of nucleus is known as karyokinesis. Division of nucleus. तो karyokinesis में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. So here there is no direct division of nucleus inside the cell, but various changes takes place inside the nucleus, and that changes are divided into four phases. First is prophase, second is metaphase, third is anaphase, and fourth is telophase. तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं. जो भी चेंजेस होते हैं उनको फोर फेज में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. यहाँ ध्यान में रखने की ट्रिक कैसी है? PMAT, prophase, metaphase, then anaphase, telophase. Second process of mitosis is cytokinesis. So what is meant by cytokinesis? Division of cytoplasm. Division of cytoplasm is called as cytokinesis. So in animal cell, cytokinesis takes place by formation of furrow, whereas in plant cell there is formation of cell plate. कि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन होता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है. दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द थ्री फेजेस ऑफ इंटरफेज, G1 फेज, S फेज, एंड G2 फेज. नाउ MCQ, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंटरफेज स्टेज ऑफ सेल साइकिल. सो हियर फोर ऑप्शंस आर गिवन. Our answer is G1, S, and G2, last one. Now select the correct sequence of karyokinesis. At the time, prophase, metaphase, anaphase, telophase, PMAT, that is the correct answer. The process of mitosis in which the cell divides into two daughter cells is known as interkinesis, karyokinesis, cytokinesis, cell duplication. So our answer is cytokinesis. Now coming to interphase, we know that interphase is divided into three phases. First is G1, which is also called as gap 1 phase. Second is S phase, also called as synthesis phase. Third one G2 phase, also known as gap 2 phase. So first G1 phase, it is period between mitosis and initiation of DNA replication. कि mitosis और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में जो फेज आती है उसे कहते हैं G1. यहाँ पे जब हम सेल साइकिल के डायग्राम देखते हैं तो ये माइटोसिस
और यस फेज। इन दो फेज के बीच में जो फेज आती है उसे कहते हैं G1 फेज, गैप 1 फेज। तो क्या क्या चेंजेस दिखते हैं G1 फेज में? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स DNA। कि सेल जो है G1 फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और कंटिन्यूस ग्रो होती है सेल की। एंड सेल आल्सो सिंथेसाइजेस वेरियस ऑर्गेनेल्स की नियर अबाउट 90% जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के G1 फेज में डुप्लीकेट होते हैं। और डिफरेंट टाइप्स के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन्स है, अमाइनो एसिड्स, ATP molecules, they are synthesized during this G1 phase. But here remember that in G1 phase there is no replication of DNA. This is one of the most important characteristic feature of this phase. Next phase, S phase, which is also called as synthesis phase. So in this phase DNA synthesis or DNA replication takes place in the cell. The amount of DNA per cell गेट्स डबल्ड। यहाँ पे क्या चेंजेस दिखते हैं यस फेज में? DNA का सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस ऑफ DNA सिंथेसिस, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए रेप्लिकेशन ऑफ DNA। कि DNA का सिंथेसिस होता है और DNA की जो अमाउंट है वो सेल में डबल हो जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस यस फेज। कि ये की स्टेप है, की पॉइंट है यस फेज का, कि DNA का सिंथेसिस होता है और DNA का अमाउंट जो है डबल हो जाता है सेल में। देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर सेम क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। इन एनिमल सेल सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। सो वी नो दैट नियर द न्यूक्लियस इन एनिमल सेल देयर इज अ सेंट्रोसोम, एंड दिस सेंट्रोसोम consist of two centrioles which are present perpendicular to each other, and these two centrioles duplicate during S phase. तो ये जो एक सेंट्रोसोम है, एक सेंट्रोसोम से दो सेंट्रोसोम यहाँ पे तैयार होते हैं न्यूक्लियर सेल में, और ये जो सेंट्रियोल्स है माइटोसिस फेज में स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं सेल को। Now last phase, G2 phase, which is also called as gap 2 phase. It is duration between S and M phase. So when we see the cell cycle diagram, at that time this G2 phase, it is present between S and M phase. So remember this. Question can be asked, the position of G2 phase in cell cycle is, it is present in between G1 and S, present between S and M. At that time our answer is, it is present between synthesis phase and mitosis phase. So what are the changes seen in the cell during this phase? Organelles such as chloroplast and mitochondria duplicates in this phase. कि chloroplast और mitochondria ये दो जो organelles है ये G2 phase में इनका synthesis होता है। So remember this, one of the most important characteristic feature of G2 phase. Mitochondria and chloroplast are duplicated in G2 phase. Tubulin proteins that form spindle fibers are also synthesized during G2 phase. जो tubulin proteins हैं जो स्पिंडल एपरेटस तैयार करने के लिए हेल्प करते हैं, जो माइटोसिस फेज में मेटाफेज में स्पिंडल एपरेटस तैयार होता है, तो ये जो स्पिंडल एपरेटस है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है। सो दिस ट्यूबुलिन प्रोटीन्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस दे आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस G2 phase. Then proteins and RNA they are synthesized continuously during G2 phase. कि सेल डिवीजन के लिए माइटोसिस प्रोसेस के लिए जो भी कोई प्रोटीन्स लगते हैं, RNA मॉलिक्यूल्स लगते हैं, एंजाइम्स लगते हैं, वो सब G2 फेज में सिंथेसिस होता है उनका। सो गॉट दिस। नाउ G0 स्टेज, व्हाट इज मीन बाय G0 स्टेज? Some cells in adult animals they do not divide and enter into inactive stage.
कि कुछ सेल्स जो हैं अडल्ट एनिमल्स में वो डिवाइड नहीं होते, जैसे कि नर्व सेल है, हार्ट सेल्स है, nerve cells and heart cells after maturation they do not divide. There is no division in these cells after maturation and differentiation. They do not divide further in adult animals, and the stage of the cell in which the cells exit G1 phase, the stage of the cell cycle in which the cell exits G1 phase and enter into inactive stage called as quiescent stage और G0 स्टेज कि सेल साइकिल की ऐसी स्टेज जिसमें सेल G1 फेज को एग्जिट करती है और इनएक्टिव बन जाती है, तो ऐसे स्टेज को कहते हैं क्विसेंट स्टेज और G0 स्टेज और G0 स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, G0 स्टेज में सेल जो है फर्दर सेल साइकिल में एंटर नहीं करती और G1 फेज को एग्जिट कर देती है और इनएक्टिव बन जाती है। जब सेल G1 फेज को एग्जिट करके इनएक्टिव बनती है तो उस स्टेज को कहते हैं क्विसेंट स्टेज और G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो यहाँ पे ये जो सेल है G0 स्टेज में कि जो इनएक्टिव सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली लेकिन एक्टिव रहते हैं। मेटाबॉलिकली कैसे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और इन सेल्स को जब ज़रूरत होती है तो जो रेगुलेटरी सिस्टम है बॉडी की, तो वो जब उनको सिग्नल देती है कि और कॉल करती है कि अभी आपकी ज़रूरत है, व्हेन दे आर कॉल्ड दे कैन अगेन डिवाइड। टेम्पररी दे आर इनएक्टिव बट व्हेन रिक्वायर्ड और व्हेन नीडेड टू बॉडी गिव्स सिग्नल टू सच इनएक्टिव सेल्स एंड सच सेल्स दे अगेन डिवाइड एंड रिप्लेस द डेड और डैमेज्ड सेल्स। कि बॉडी में कुछ सेल्स डैमेज होते हैं, उन कुछ सेल्स का डेड हो जाती है, जैसे हमें कोई लीजन हुआ है, इंजरी हुए हैं, टिश्यू में कुछ डैमेज हुआ है, तो उस वक्त क्या होता है सेल का बॉडी को सेल्स की ज़रूरत होती है। एट द टाइम जो सेल G1 फेज एग्जिट करते हैं, क्विसेंट स्टेज में होते हैं, इनएक्टिव बन जाते हैं, लेकिन ऐसे सेल्स को जब बॉडी सिग्नल देती है, कॉल करती है, तो वो सेल फिर से एक्टिव होते हैं और सेल साइकिल में एंटर करके डिवाइड होते हैं। सो गॉट दिस। सो MCQ कैन बी आस्क्ड ऑन दिस 3 phases ऑफ इंटरफेज। सो बहुत सारे MCQ यहाँ पे पूछा जा सकता है, जैसे कि G1 फेज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि वो माइटोसिस और S फेज के बीच में की फेज है। तो G1 फेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड द मोस्ट एक्टिव मेटाबॉलिकली एक्टिव phase of interphase in which organelles are synthesized and biomolecules are synthesized is S phase, G2 phase, G1 phase, G0 phase. So at that time answer is G1 phase. Then the phase of the interphase of cell cycle in which there is synthesis of DNA and no duplication of chromosome is called as. So our answer is synthesis phase. The phase of the cell cycle in which proteins, tubulin proteins and chloroplast and mitochondria are synthesized is nothing but the G2 phase. So many questions can be asked on this point. So learn, remember this all the points of the topic and 3 phases of the interphase. I hope you understood all the content of this video. In next video we will discuss in detail the mitosis.